السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ سورہ مائدہ کی یہ 44 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ اللہ فرما رہے سورہ مائدہ 44 میں، جو کوئی اللہ کے حکم، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ کا حکم، آرڈر، فتویٰ اللہ کا، جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ 44 نمبر کی آیت ہے، سمجھے آپ؟ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، سمجھے آپ؟ کیا صحیح کیا غلط، تو اللہ کا حکم قرآن میں موجود ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کہہ دو کہ سچ آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا۔ سچ بات آ گئی ہے، جھوٹ بات مٹ گئی، اور جھوٹ بات کو تو مٹنا ہی ہے، تو سچ بات پوری ادھر اللہ نے بتا دی، یہی سچ بات ہے۔ اب اس کے خلاف جتنی باتیں ہیں، چاہے بخاری میں ہو، چاہے فضائل اعمال میں، چاہے بڑے سے بڑا عالم مفتی فتویٰ دے رہا ہو یا کچھ بھی کہہ رہا ہو، قرآن کے خلاف ہے تو کافر ہے، اللہ فرما رہے۔ تو یہ اللہ کا فتویٰ ہے، آپ لوگ کو بہت غصہ آ رہا ہے، ارے فتویٰ مت دو، میرے کو کئی لوگ بولے نا فتویٰ مت دو، ارے فتویٰ کس کا ہے بھائی؟ یہ سب باتیں کس کی ہے؟ یہ سب فتویٰ ہے، اللہ کا ورڈنگ، سمجھے آپ؟ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں کرے وہ کافر ہے، کس کا فتویٰ ہے یہ؟ سوچیے آپ لوگ سوچ رہے میں دے رہا ہوں، میرے کو بول رہے فتویٰ مت دو، میرے کو بول رہے ارے میں فتویٰ دے رہا ہوں، یہ تو اللہ دے رہا فتویٰ، صرف میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ایسا فرما رہا ہے قرآن میں، سمجھا آپ؟ فیصلہ کس سے کرنے کو بولا اللہ نے؟ قرآن سے نا، ہر معاملات میں، سمجھے؟ سورہ مائدہ آیت 45 میں یہاں تو کافر بولا، تو 45 میں جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق، حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی ظالم ہے۔ یہاں کافر 44 میں بولا آیت نمبر، 45 میں ظالم بولا، اور 47 میں جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہی فاسق ہے، نافرمان، سمجھے آپ؟ نافرمانی کا ٹھکانہ جہنم۔ سورہ جن آیت 23 میں نا، جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ جن آیت 23، سمجھے آپ؟ تو یہ سب فتوے اللہ کے ہیں، یہ مت سوچو کہ میں بول رہا ہوں، میں تو آپ کو قرآن کا بیان کر رہا ہوں، قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کی باتیں، آپ کھول کے دیکھ لو اپنے گھر میں قرآن رکھے، سمجھا آپ؟ اللہ فرما رہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا نافرمان لوگ، تو آپ لوگ بولتے ہیں نہیں رہے گا، فتویٰ مت دو، میرے کو بول رہے اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کے فتویٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ بول رہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور آپ اللہ کی بات کو رد کر رہے ہیں، بولتے نہیں ہمیشہ نہیں رہے گا، کلمہ پڑھنے والا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کلمہ پڑھنے والے کو ہی بول رہے، کس کو بول رہے؟ جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہی کافر ہے، کس کو بول رہا اللہ؟ کلمہ پڑھنے والے کو نہیں فرما رہے اللہ؟ سوچو آپ، غلط فہمی میں مت رہو، کلمہ پڑھو یا مت پڑھو، اگر اللہ کا حکم ہی انکار کریں گے، حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ جو بول رہا ہے ہمیشہ رہیں گے، آپ بولتے ہمیشہ نہیں رہیں گے، تو اللہ کی بات کو جھٹلا رہے نا، رد کر رہے نا، انکار کر رہے نا، انکار کرنے والے کو کافر بولتے، سمجھے آپ؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، پورے قرآن کھول کے چھان ڈالو، کہیں لکھا ہے کہ جہنم میں جا کے واپس آئیں گے؟ جو آپ لوگ عوام کو گمراہ کر رہے، بخاری کی جھوٹی حدیث نبی کے نام سے گڑی ہوئی، نبی نے فرمایا نا گڑیں گے حدیث سے، سمجھا آپ؟ دجال اور کذاب ہوں گے جو حدیثیں تم کو گڑیں گے، جھوٹی گڑ کے دیں گے، تو ان سے بچ کے رہنا۔ مسلم کی حدیث ہے، باب مقدمہ حدیث نمبر 15 یا 16 حدیث نمبر کھول کے دیکھ لو آپ، نبی نے فرما دی ہے کہ حدیثیں گڑ کے دیں گے دھوکے باز اور جھوٹے لوگ، کذاب، جھوٹا، سمجھا آپ؟ دجال تو نبی نے انہیں کو بولا ہے، جو لوگ گڑ کے جو حدیثیں دے رہے اس کو نبی نے دجال بولا، دھوکے باز،
दज्जाल का मतलब होता है धोखा देने वाला। आपको धोखा दे रहे हैं ना कि जन्नत मिलेगी, थोड़े दिन सजा भुगत के, ये धोखा दे रहा है आपको, झूठी बात है, कज़्ज़ब, समझा आप, झूठी बात है। अल्लाह फरमा रहे हमेशा हमेशा रहेगा, जो भी गया जहन्नुम में, जो गया जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा। पूरे कुरान में अल्लाह फरमा रहे हमेशा हमेशा रहेगा। और आप बोल रहे हो अल्लाह की बात को रद्द करके, अल्लाह की बात का इनकार करके, नहीं, कहां से लाए अल्लाह के खिलाफ बातें? दुश्मन ने दिया आपको ये नबी के नाम से कि सजा भुगत के आएंगे, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है ना कि हम सजा थोड़े दिन भुगतेंगे, बाद में जन्नत। उनकी सोच है, तो उन्होंने आपको हदीस में दिया है, उनकी सोच कुरान में बता दिया अल्लाह ने। सूरह बकरा आयत 80 और सूरह आले इमरान आयत 24, समझा आप, कि जहन्नुम में हम नहीं जाएंगे मगर गिनती के चंद रोज। अल्लाह फरमा रहे क्या इन्होंने अल्लाह से अहद ले लिया है? सूरह बकरा और आले इमरान में इनको इनके ये जो दीन पे बोतान बांध रहे इनको धोखे में डाल दिया है। ये सब धोखा है कि जहन्नुम में सजा भुगत के वापस आएंगे। वो लोग सोच रहे, तुमको वही लोग हदीस में डाल के दिए कि तुम भी ऐसे ही सोचो, गलत काम करो, दुनिया में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ करते रहो और थोड़े दिन भुगत के आएंगे। ऐसा धोखा दिया गया है। अल्लाह फरमा रहे जो कोई अल्लाह के खिलाफ हुक्म देगा, अल्लाह के खिलाफ अमल करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो जहन्नुम में हमेशा रहेगा। सूरह जिन आयत 23 में है ना। तो सब अल्लाह के फतवे है, समझे आप। जो भी अल्लाह की आयत का इनकार करेगा वो जहन्नुम में हमेशा रहेगा। अल्लाह के बातों के खिलाफ अमल, अल्लाह की बात का इनकार, अल्लाह के खिलाफ अमल करेंगे। इब्लीस अल्लाह के खिलाफ ही अमल किया ना, झुका नहीं। अल्लाह बोला सजदा कर आदम को, नहीं सजदा किया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। शिर्क थोड़ी किया था इब्लीस ने, हुक्म नहीं माना, कफरू, इनकार किया। इनकार किया तो सीधा जहन्नुम हमेशा रहेगा। तो आप लोग भी इनकार करेंगे अल्लाह की बात का और अमल नहीं करेंगे। अल्लाह हुक्म दिया अमल करो, और अगर आप अमल नहीं करेंगे तो सीधा जहन्नुम में चले जाएंगे। ये सब अल्लाह का फतवा है, समझे आप। सोचिए आप ये सब बातें, गौर करिए। ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ मेरा फतवा है, ये नौज़ुबिल्लाह, ये सब मेरा फतवा नहीं है, ये सब अल्लाह का फतवा है। कोई इंसान को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी मर्जी से कुछ बात पेश करे, समझे आप। सोचिए सब बातें, अल्लाह का फतवा कुरान है। पूरा कुरान जो है ना, ये अल्लाह का फतवा है, अल्लाह का वर्डी हुक्म। बस अब आपको इसी पर अमल करना है। अगर नहीं मानेंगे तो सीधा जहन्नुम में चले जाएंगे, समझे। दायमी शराब पीने वाला जहन्नुम में जाएगा, हमेशा उसमें रहेगा, जन्नत में नहीं जाएगा। नबी की हदीस इब्ने माजा की। फिर अब सोचो, जमीन का टुकड़ा, किसी ने जमीन का हक मारा है, जमीन किसी की गजब कर लिया, खा गया किसी की जमीन, हड़प कर लिया, जन्नत में नहीं जाएगा। चाहे हाजी हो, नमाजी हो, कोई भी। क्या हाजी, नमाजी, रोजेदार, नमाज रोजे वाले को छूट है क्या चोरी करना, हड़प करना जमीन? सोचिए आप, नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, रोजा भी बैठ, बोले सब दिखावा था। नमाज का मकसद ही बुराई से बचना, रोजे का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार नेक बनो, मुत्तकी। गुनाह से बचने वाले को परहेजगार मुत्तकी बोलते हैं, समझे आप। नमाज का मकसद क्या है? इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत 45। नमाज बेहयाई, बुरी बात से रुकती है। बुरी बात है ना, किसी का हक मारना, जमीन हड़प कर लेना, चोरी करना, जिना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब बुरी बात है ना। तो बुरी बात, अल्लाह के खिलाफ जो भी अमल करेगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा। ये अल्लाह का फतवा है, समझा आप। आलिम मुफ्ती का फतवा आप लोग मांगते पूछते हैं, आलिम साहब का फतवा है, उलमाओं का फतवा है। अरे अल्लाह का फतवा देखो पहले, अल्लाह से फतवा लो, अल्लाह से फतवा लो। अल्लाह ने हर बात में फतवा दे चुका है, कुरान में मौजूद है अल्लाह का फतवा। अब आलिम मुफ्ती से फतवा मांग रहे, अरे खुद खोलो ना, घर में तो मौजूद है कुरान, पता चल जाएगा कि अल्लाह का इस मामले में हुक्म क्या। हर मामले में, हर मामले में, हर बात का अल्लाह ने जवाब दिया है, समझा आप लोग तो भटक रहे हो ना झूठी हदीस, आलिम के चक्कर में। उलमाओं ने बोला, मुफ्ती ने बोला। अरे भाई, फतवा देने वाले को मुफ्ती बोलते ना, तो सबसे बड़ा फतवा देने वाला तो अल्लाह है। तो अल्लाह ने फतवा दे चुका है, तो ये अल्लाह का फतवा नहीं ले रहे, आलिम मुफ्ती का फतवा ले रहे। तो मिलावट कर करके आपको दे रहे, खूब खूब मिलावट करके दे रहे अल्लाह का खिलाफ। तो अल्लाह बोल रहे जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करे वही काफिर है, वही जालिम है, वही फासिक। तीनों बात सूरह माइदा में बता दी है, समझे आप लोग को तो काफिर हम नहीं है, मदरसे वाले ने सिखाया। काफिर हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, सिख,
ईसाई, वो लोग हिंदू है। बताए नहीं कि कोई मदरसे से, न बरेली, न देवबंदी, न अहले हदीस, कोई मदरसे से आलिम मुफ्ती सब मिलावटी गुमराही बात दे रहे। ईमान वाले काफिर होते अल्लाह बता रहा है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 100। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ईमान वाले को बोल रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ईमान के बाद काफिर बना देंगे। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले को बोल रहा है ना अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू किसको बोल रहा है अल्लाह? जो लोग ईमान लाए, कलमा पढ़ते, नमाज रोजा हज करते, उनको बोल रहा है अगर तुम अहले किताब की बातों को मान लोगे तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, इनकार करने वाला बना देंगे। ईमान लाने के बाद इनकार करने वाला, अहले किताब की बातों को मानोगे तो उनकी बातें किधर है? ये सब हदीसों में उनकी बातें जो उन लोग ने मिलावट कर करके दिए, समझा आप? ताकि तुम भी ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए, समझा? सूरह आल इमरान 106 में बता दिया अल्लाह ने, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। क्यों? इन लोग की बातों पे चले ना, हदीसों में इन लोग की बातें मिलेगी। कुरान में तो वो लोग मिलावट नहीं कर सके, हदीसों में की है वो लोग ने। तो आप लोग हदीस को मान के कुरान की बात को धड़ाधड़ रिजेक्ट करते चले जा रहे। आलिम मुफ्ती बोला, हमारा आलिम बोला, बोले हमारे मुफ्ती साहब ने बोले, वो हमारे उलमा ने बोले, उलमा ने कहा, समझा? उलमा को रब बनाए बैठे अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह की बातों को छोड़कर, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह को छोड़कर उलमा को रब बनाए। सूरह तौबा में है ना आयत 31। आजकल सबके मुंह पे उलमा उलमा, आलिम आलिम, अरे यही लोग तो पूरे मिलावट करके दे रहे दुनिया। यही लोग तो फिरके बनाए, आलिम मुफ्ती लोग ने। और कौन बनाता फिरके? आप और हम मामूली आदमी लोग नहीं। आलिम मुफ्ती फारिग है, वहां से प्रिंसिपल, मदरसे से फारिग, मदरसे का प्रिंसिपल भी गुमराह, टीचर पढ़ा रहा वो भी गुमराह, स्टूडेंट को भी गुमराह कर रहे, सब गुमराह। तो सर्टिफिकेट दे रहे, खुद गुमराह, वही सर्टिफिकेट गुमराही का सर्टिफिकेट। बरेली, देवबंदी, अहले मदरसों का सिस्टम आया ही कहाँ से? सब साजिश है, समझो। नबी साहबी के दौर में एक भी मदरसा नहीं था। मस्जिद, मस्जिद में आते थे, सवाल करते थे, जवाब लेके चले जाते थे। अल्लाह के नबी यहाँ से जवाब दे देते थे कुरान से। कई कई आधी दुनिया पे तो हजरत उमर हुकूमत की है, मदरसा एक भी बनाया क्या? मदरसों का चलन ही नहीं था, मदरसों का सिस्टम ही नहीं था। सिर्फ मस्जिद बनती थी, मस्जिद में नमाज, मस्जिद में कुरान का बयान, कोई आया कुछ मसला लेके कुरान का बयान करके कुरान से बता दिए, बस चलो जाओ। मदरसों का सिस्टम रखने का, किताबें घुस गई अंदर, सारी किताबें घुस घुस के आलिम मुफ्तियों की। कौन है? बुखारी कौन है? इमाम बुखारी इंसान है ना, आलिम बोलो मुहद्दिस बोलो, इंसान है, लिख के गए मिलावट। वो नहीं किए तो बाद में दुश्मन ने कर दिया। फिर में दिया, अबू दाऊद, मुस्लिम, सब कौन थे? इंसान थे ना, आलिम मुहद्दिस, लिख के गए। अगर वो सही थे, सही लिख के गए, बाद वाले लोग ने, दुश्मन ने डाल दिया। 1200 साल हो गया ये लोग को मर के, इंतकाल हो के ये लोग का, तमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इन लोग को मर के 1000 साल हो गया, 1200 साल। तो मिलावट हो गई ना। अरे जब आसमानी किताब में मिलावट कर दी है दुश्मनों ने, तौरात, इंजील, ज़बूर में मिलावट कर दी है। आसमानी किताब अल्लाह की, जैसे कुरान है ना, वैसे तौरात, इंजील, ज़बूर भी आसमानी थी। उसमें जब मिलावट कर दिए तो ये हदीसों की किताब की क्या वैल्यू है? इसमें मिलावट करना कितना आसान है। जब आसमानी किताब, अल्लाह की किताब में मिलावट कर दी तो अल्लाह ने उसको हटा दिया और कुरान नाजिल की आखिरी किताब, बस इसके बाद अब कोई किताब नहीं। इसलिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत ले ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सूरह हिज्र आयत नंबर 9। हमने इसको नाजिल किया, नसीहत को, और हम इसके हिफाजत करने वाले हैं। तो आज तक हिफाजत है, क़यामत तक इसकी हिफाजत है। तो किधर मिलावट हुई है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सब में मिलावट दुश्मनों ने की है, जो लोग तौरात, इंजील, ज़बूर में की है, पहले किताब लोग, समझे आप? ईमान लाने के बाद काफिर, अल्लाह बता रहे कि ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता आदमी, और ईमान लाने के बाद मुशरिक भी हो जाता है। सूरह यूसुफ में है ना, अक्सर लोग जो ईमान रखते हैं साथ में शिर्क भी करते हैं। तो ईमान लाने के बाद शिर्क करते हैं, मुशरिक। नबी को भी फरमा दिया सूरह ज़ुमर आयत 65 में अल्लाह ने, ए नबी, अगर आप, हमने आपको भी बता रहे हैं, कह रहे हैं, और आपसे पहले जितने पैगंबर थे सबको कहा था कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा सारा अमल हकारत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सारा नेक अमल बर्बाद, नमाज रोजा सब बर्बाद। पैगंबर को बता रहे सूरह ज़ुमर आयत 65, खोल के देखो कुरान। तो ईमान के बाद शिर्क, मुशरिक हो जाता आदमी। ईमान के बाद अल्लाह की बात का इनकार, काफिर हो जाता है। तब तो बताया, ईमान वालों को तो बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह आले इमरान आयत 100।
तो आप लोग को समझ लेना चाहिए کہ قرآن کی روشنی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن میں اللہ بتایا ایمان لانے کے بعد انسان کافر بھی ہوتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کی باتوں کا تو کافر ہو جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اور ایمان لانے کے بعد شرک کر کے مشرک بھی ہو جاتا ہے، سب بتا دیا اللہ نے، سمجھے آپ؟ قرآن پڑھیے سمجھیے، یہ سب اللہ کا فتویٰ ہے، علماء کے فتوے کی اہمیت دیتے ہو، علماء کا فتویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کا یہ اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ سے فتویٰ لو، اپنے سوالوں کا جواب ہر مسئلے میں، جادو ہوتا نہیں ہوتا، نظر لگتی نہیں لگتی، سب قرآن میں جواب، جادو بھی نہیں ہوتا، نظر بھی نہیں لگتی، نہ جن پکڑتا، قرآن میں سب جواب ہے، جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، نکلنا نہیں ہے، سب قرآن میں جواب ہے، سمجھا؟ کوئی نہیں بخشوا سکتا، سب ہے قرآن میں، نبی بھی نہیں بخشوا سکتے، نبی نے سورہ جین آیت 21 میں بھی بتا دیے، سورہ زمر آیت 19 میں بھی اللہ فرما دیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں جہنم میں جو لوگ جل رہے ہیں؟ پورے سوال کا جواب اندر موجود ہے، سمجھا آپ؟ پڑھیے ترجمے سے، اپنی زبان میں تو علم، روشنی، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، دوسری کتاب گمراہی پڑھ رہے، وہ کیا ہدایت کی کتاب ہے؟ اللہ تو اس کو ہدایت کی کتاب، تو ہدایت مانگ رہے تو ہدایت کی کتاب کھولو، پڑھو، اپنی زبان میں جانکاری لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔